हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्री डॉट्स एंड हैश। वापस आ गए हम लोग एक और हैश के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल watching our episode, all 120 people. शायद इसमें 50 हमारे ही दोस्त हैं। 120 मिलियन व्यूअर्स है क्या हमारे? 120 बिलियन बिलियन? तो अलग अलग प्लेनेट पे भी लोग दिख रहे हैं क्या? अलग अलग टाइमलाइंस पे देख रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स में भी चल रहा है। वी आर सो पॉपुलर एनीवे। चलो वहाँ भी आप यही कर रहे हो बात। हैं? तो मैं ये सवाल से शुरू करना चाहूंगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम, हमारे व्यूअर्स के लिए भी और आप दोनों के लिए भी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू वर डूइंग नथिंग? When was the last time I was doing nothing? To define nothing, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई यू आर डूइंग नो एक्टिविटी। no thoughts also. थॉट्स नहीं, थॉट्स हो सकते हैं। Last time I was not doing was yesterday night when I was sleeping. इट्स नॉट स्लीपिंग बाबा, अच्छा। कॉन्शियसली नॉट डूइंग एनीथिंग। Okay, consciously not doing anything. मतलब कि आप फोन नहीं देख रहे हो, म्यूजिक भी नहीं सुन रहे हो, कुक भी नहीं कर रहे हो, खा भी नहीं रहे हो, गाड़ी भी नहीं चला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा कब था आखिरी बारी? मतलब लेट्स से मैं बीच में बैठा हूँ, हाँ। just saying, या पहाड़ पे बैठा हूँ, आधा घंटा बैठा हूँ just looking at the waves. That is considered. That can be considered doing nothing, yeah. Okay. So yes, I was doing nothing about a week ago. I was in Goa for 3-4 days. When I was sitting on the beach, absolutely doing nothing. Thoughts were still coming in my mind. I cannot stop thoughts. ठीक है। But yeah, I was not doing anything. But let maybe for 15 minutes. उसके बाद फिर कुछ चालू कर दिया. तो maybe 15 minutes sometime. तेरे लिए है क्या कुछ ऐसा? I think I love doing nothing. There are days like, say for example, in the morning also, if I have time, I sit and probably just ponder. When there's no TV, nothing, I just sit. And during the night times mostly after I'm done with dinner. So I really enjoy that time because most of the time I actually think of nothing. Like for example, I'd be sitting and staring at the wall and looking at the wall itself, trying to figure out what's there on the wall. So for me, it's not a distant phenomena. What about you, Raman? आप थोड़ा माइक भी पास कर लो। हाँ, मैं आगे चला जाता हूँ थोड़ा सा. Yeah, what about you, Raman? When were you last doing मेरे nothing? लिए थोड़ा I would have to think hard. ऐसा कुछ top of the head मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। होंगी शायद pockets, but बहुत ऐसे याद नहीं है। मैं भी कभी meditate कर रहा हूँ last time, तो तभी हुआ होगा ऐसा। Otherwise, but what I'm trying to come to is a topic for the day, which is questioning if we are addicted to being busy or to doing things. Are we addicted to busyness, and how we are defining busyness is when you are doing things, when you're doing some activity, which can be, anything. And we are going to debate if it is addictive. Okay. And by addictive, I mean like caffeine or like scrolling. And you Insta cannot or, Stay without. Yeah. You cannot stay without doing nothing. Yeah. Okay. Right, so that's going to be the topic for the day, and that's what we are going to talk about. like and subscribe. तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइकोलॉजी से इसकी, कि ये जो बिजीनेस है या एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ये आता कहाँ से है, ये उत्पन्न कहाँ से होता है? कहाँ से आता है? तो इसमें एक चीज मैं पढ़ रहा था इंटरेस्टिंग, जो ये थी कि these are basically dopamine loops. Every time when you complete an activity, आप एक टास्क लिस्ट से आप एक चीज चेक करते हो, तो एक सॉर्ट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है जो आप फील करते हो, Okay. और आप वही चेज कर रहे हो थ्रू आउट। जरूरी नहीं है कि जब आप बिजी हो या आप चीजें कर रहे हो तो आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो सकता है आप बहुत ही कुछ स्टूपिड सी चीज कर रहे हो, है ना? ऐसे मतलब सबसे मीनिंगलेस तो स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम लगता है मुझे, है ना? जो आई स्टिल कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट, बट इट इज अटरली मीनिंगलेस। इट इज उसमें कुछ कुछ अच्छा नहीं, कुछ बीच बीच में आ जाता है। On that thought, are we literally, by shooting this podcast, are we being busy or are we being productive? You can be productive when you are busy, but every time you are busy does not mean you are going to be productive. So for this podcast, We are productive. We are productive. we are productive. We have he has done some research. We have thought about it. We are shooting this.
iPhone is involved, software is See, we are involved. producing something और उससे प्रोडक्शन अगर इन्वॉल्व है तो प्रोडक्टिव तो है ही Productive है। नहीं तो क्या लगता है आपको और क्या साइकोलॉजी के बारे में क्यों ऐसा होता है कि पीपल आर कंफर्टेबल डूइंग समथिंग ऑल द टाइम तो एक तो ये है कि जैसे आई ऑलवेज कम बैक टू द कंडीशनिंग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, राइट? जैसे बचपन से ही हमको, या अभी से लेट्स से 2000 3000 4000 साल से ही आइडल बैठना, आपका बचपन तब से ही शुरू हुआ है बेसिकली। नहीं, हाँ मतलब उतना नहीं, बाबा हर दिन एक साल ओल्ड हो जाते हैं नहीं सच बाहर उजागर होते हैं आज ही पता चला हमें कि आप एक्चुअल में 1 साल और ओल्ड हो। हाँ मतलब ये मैंने एक राज की बात छुपाई थी, बट ठीक है मैट्रिमोनी साइट में ऐसा नहीं डाला गया था। एनीवेज मैट्रिमोनी साइट क्यों बनाई थी बाबा ने नहीं ऐसा आपके लव मैरिज हुआ है ना? मजाक मैट्रिमोनी साइट में नहीं गया हूँ मैं तो। नहीं, आई थिंक हमको सिखाया गया है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि बिजी रहना इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस बोल लो, डूइंग समथिंग, अचीविंग समथिंग। तुम अगर निठल्ले बैठे हो, निठल्ला बैठना और कुछ नहीं बिजी ना होना सेम चीज नहीं है। हाँ मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि कुछ ना कुछ करते रहना है, बिजी रहना आपको है। नहीं लगता कि पुराने जैसे हमारे जो पेरेंट्स वुड बी मोर कंफर्टेबल डूइंग नथिंग देन अस? They would not be comfortable doing nothing. They had lot less avenues to keep on being busy all the day. नहीं, बीइंग ऑन फोन तो बहुत ही आसान है। नहीं फोन तो आज हुआ है। आज से 30 साल पहले फोन नहीं था, 100 साल पहले Actually, टीवी right. नहीं था। तो द एवेन्यू, जैसे लेट्स से कोई ऑफिस से आ गए, गवर्नमेंट सर्वेंट थे मोस्टली, राइट? ऑफिस से आ गए, राइट? मे बी बीवी के साथ, बच्चे के साथ थोड़ा बैठ लिया, व्हाटएवर, राइट? देन अदर डिस्ट्रैक्शंस बाबा नहीं ने बीवी के साथ बच्चे कर लिए। नहीं मैं अपना ऑफिस नहीं बोल रहा, अरे सब मुझ पे क्यों डाल देते हो? तो the avenues of getting distracted were also less, that is true, right? अभी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, लोगों के पास गाड़ी नहीं था, स्कूटर ही नहीं था, साइकिल में कितना लॉन्ग वॉक पे जा सकते लॉन्ग वॉक पे जा सकते, चलने का टाइम। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि डिस्ट्रैक्शन हैज प्लेड अ मेजर पार्ट, एंड आई बिलीव कि ये कंडीशनिंग भी इन अ वे है कि तुम कुछ करो, ऐसे ही क्यों बैठे हो? मतलब जैसे कभी तुम जैसे स्कूल में थे, तुम अगर अपनी मम्मी को बोल दिए कि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ जिंदगी के बारे में, मोस्ट ऑफ आवर मदर और फादर्स विल से कि अबे कल एग्जाम है, पढ़ लो, या परसों एग्जाम है, क्या बैठ के सोच रहे हो? सो आई थिंक कुछ नहीं करके जब भी तुम रहते हो, अभी तो रह पाते हो, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, जैसे बचपन में तुम अगर कुछ नहीं करके रह रहे हो, आई डोंट नो, ऐसा इंस्टेंट मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट अगर तुम हो तो इट हैज बीन टेकन नेगेटिवली बाय योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कि तुम क्या ऐसे कि बैठे हो, कुछ तो करो, खेलने चले जाओ, या तो ये कर लो, ये वो कर लो, होमवर्क कर लो। सो स्टेइंग आइडल, और आइडल भी नहीं, स्टेइंग इन योर ओन जोन, डूइंग नथिंग हैज आल्सो नेवर बीन ए थिंग दैट वाज एप्रिशिएटेड एवर, इज व्हाट आई फील। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ है पीयूष तेरे व्यूज इस पे? हाँ मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अक्सर हमने भी सुना होगा पहले बचपन में कि खाली दिमाग शैतान का घर, राइट? तो हमें बचपन से ये बोला गया कि तुम खाली मत बैठो, राइट? बट उसका हमने काउंटर ढूंढ लिया है। हम खाली बैठे रहते हैं, सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं, वी से दैट वी आर बिजी, ठीक है? सो मच सो दैट at our workplaces you would see that people value your work and assign credits to you, or say appraisal भी उसी तरह से होता है कि number of hours you clock at a workplace, right? so called वो colonial thinking की 70 hour week वाला Infosys वाले, sorry LNT वाले जिसने बंदे ने बोला था। but I feel कि inactivity and basically wasting time are almost similar. By being busy, when we were talking about our parents or people from yesteryears, उस समय they did not have means also. For example, आज हमारे पास इतना टाइम इसलिए है क्योंकि काफ़ी चीज़ें सरल हो गई हैं. For example, to book a cab, or for that matter, machines have made our life more easier and given us much more time. What have we done with that time? That's a big question mark. But we generally have more time because our parents had to do everything. Like खाना भी उनको mostly खुद बनाना पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे, घर साफ रखना पड़ता था, तो they were actually being busy. No matter whether वो उस टाइम का पूरा उपयोग कर रहे थे, that's a question we can ask. But they were actually being busy. vis-a-vis अगर हमारी जनरेशन में हम बात करें तो most of us try our best to be busy or act busy, but whether it's actually productive or not is something that is always questionable.
जैसे सुना होगा काफी बार लोग कहते हैं कि जो रिटायर होने वाले होते हैं ना ऐसे ऑफिस में भी, दैट दे गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, क्या करेंगे अब, दे आर सो यूज्ड टू वर्किंग। सो रियल तो है ये, मतलब मुझे लगता है कि स्टिल बैठना बिना कुछ किए तो डिफिकल्ट चीज तो है फॉर श्योर। डिफिकल्ट भी है एंड इट इज टेकन एज अ नेगेटिव थिंग, साइन ऑफ वीकनेस। द कॉनोटेशंस आर नेगेटिव विद इट। कोई भी नहीं बोलता है कि जैसे तुम बोल रहे थे आप रिटायर करने वाले, अभी तो बढ़िया लाइफ होगा आपका 15 साल अगर हेल्दी रहे आप। कौन नहीं बोलता ऐसा? नहीं मतलब वो बोलने को मुंह पे शायद बोल दे, अंदर लोग अभी तो मतलब इसका अभी तो productive हमारे time खत्म हो जनरेशन तो गया। लोग आर वांटिंग अर्ली रिटायरमेंट, सब फायर वैल्यू हिट करके रिटायरमेंट चाहते तो वो हैं। भी रिटायरमेंट करके ना हिल भी ऐसे बैठे नहीं रहेंगे लोग, अपना कुछ एक्शन करेंगे, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। तो ऑन दिस टॉपिक ही विल बी डूइंग समथिंग। ही इज जस्ट दैट ही हैज मेड इनफ मनी और ही इज बोर्ड ऑफ हिज कॉर्पोरेट लाइफ, सो ही वांट्स टू फॉलो हिज पैशन, ही वांट्स टू डू समथिंग। ऐसा नहीं कि मतलब देयर विल वेरी फ्यू पीपल विल कम रिटायरमेंट करके, जैसे वो आलिया भट्ट का मूवी था ना, कौन सा था, हाईवे। She wants to stay in a cozy home just in the mountains and do nothing. That was her philosophy in a way, right? And with her boyfriend or husband. लेकिन मुझे ये जोर जमाना नहीं चाहिए। वैसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं अगले रिटायरमेंट लेंगे, रिटायरमेंट लेके वो लोग कुछ करना चाहते हैं, आइदर देयर ओन स्टार्टअप या तो ट्रैवल ब्लॉगिंग या तो सो एक्शन तो चल ही रहा है उनका। तो रिटायरमेंट इज नॉट दैट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ट्रैप्स है ऐसे, एवरीडे ट्रैप्स आप लोगों की लाइफ में जहां पे आपको लगता है कि यू आर सिंपली डूइंग समथिंग व्हेन यू शुड नॉट बी, है ऐसी कुछ चीजें? ये रहा ये। मैं तो इंस्टाग्राम फॉर मी फॉर श्योर। No, phone for everybody in some way or the other. Like कुछ भी doom scrolling. नहीं वो मतलब मेरे लिए तो देखो, जैसे एट ए फिलोसॉफिकल लेवल अगर देखा जाए तो मैं नौकरी कर ही क्यों रहा हूँ? ठीक है, पैसे के लिए कर रहा हूँ फाइनली, एक जो मेरा लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ, बट एट अनदर लेवल ऑल ऑफ दिस थिंग्स फील कि बेमायने टू मी टू एन एक्सटेंट, राइट? तो वैसे देखा जाए तो इंस्टाग्राम ये सब तो ठीक है, दीज आर वेरी प्रूवन थिंग्स की टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट एट ए फिलोसॉफिकल लेवल देखो, बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन, मे बी 90% ऑफ द टाइम यूर अवेक। जो सो रहे हैं तो सो ही रहे। 90 के 2.5 घंटा सोते हो आप दिन में? नहीं 90% ऑफ द टाइम यूर अवेक। लेट्स से यू आर अवेक फॉर 18 आवर्स पर डे। ओके, उसका 90% अच्छा, बोल रहा हूं मैं, उसका 90% फाइनली तो तुम बेमानी चीजें ही कर रहे हो। कुड बी फॉर मेनी पीपल। Not true, no? But 90% तो ज्यादा नहीं बोल रहे, नहीं मतलब हाँ बस जैसे काम जैसे कर रहे हो। हाँ वो धर्म भी है ना आपका, फिलोसॉफिकली अगर बात करें तो। धर्म देखो, मतलब तुम कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो एसएपी का, उसमें क्या धर्म है तुम्हारा? धर्म है कि जो भी आपकी जॉब है हाँ आप उसको पूर्णतः निभाओ, वही धर्म है हाँ वैसे देखा एज जाए, एन एम्प्लॉय। हाँ वैसे देखा जाए तो है। तो मैं, लेकिन तुम जो पूछ रहे थे कि तुम मतलब क्या फील करते हो कि बिजी हो के, तो मतलब लेट्स से मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं, जहां पे आप फंसे हुए हो रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां पे आपको लगता है कि यार यहाँ तो ये सिंपली आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी व्हेन आई शुड नॉट, यू कैन। हाँ वैसे कुछ कुछ ऐसे, जैसे आई डोंट स्लीप बिफोर 3 AM मोस्टली। ओके, सो लेट्स से ऑफ कोर्स आई लव द नाइट नहीं, टाइम। बट व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग टिल 3 AM? हाँ तो सी मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ कभी, आई एम जस्ट सेइंग, ओके, कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ रिसर्च भी अगर कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग आई कैन डू दैट रिसर्च एट सम अदर टाइम इन द डे। सो लेट्स से आई कैन स्लीप बाय 1। जैसे मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं 1 बजे तक सो जाऊंगा, अभी तक एक दिन भी नहीं सो पाया हूँ। तो वो तो लगता है कि मैं 2 घंटा प्योरली वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, प्योरली क्या बोलूंगा मैं, आई शुड बी स्लीपिंग ड्यूरिंग दैट टाइम इज व्हाट आई फील, व्हिच आई एम नॉट डूइंग। तो आप कम ही सोते हो मतलब? कम ही सोता हूँ ना। तो वो एक है। फोन तो दिन में कभी भी यूज करो, अपार्ट फ्रॉम कोई कॉल आ गया, इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, वो तो वेस्ट ही है, राइट? कुछ अगर मैं अभी आई डोंट नो कैसे बोलोगे, जैसे मुझे दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत पसंद है, तुम लोगों के साथ भी, बाकी जो जो मेरे 2-3 ग्रुप है। नाउ मेनी पीपल कुड से कि ये जो ग्रुप चैट्स होते हैं, राइट, उसमें टाइम वेस्ट करना पूरा ही टाइम वेस्ट है। ओके, लेकिन अब क्या है कि मुझे पसंद है, तो देन मेरे लिए तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, राइट?
आई थिंक एक तो वो है कि ये सब चीज का यूनिवर्सल डेफिनेशन भी नहीं है। बाबा यूनिवर्सल पूछ रहे हैं, मैं कहा, आप दिन में ऐसी क्या चीजें करते हो जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए? मैं यूनिवर्सल क्या फिलोसॉफिकल 3 बजे। आई थिंक फोन में 2 घंटा तो वेस्ट कर देता हूँ दिन में। फोन एक चीज है, और एक सोचने दो और क्या है। नहीं ये सब नहीं। हाँ तो प्रोडक्टिव है, उसमें क्या है, थोड़ी वेस्टेड है कुछ भी। और क्या है, सुबह सुबह ब्रश करना इम्पोर्टेंट है। आप कर लो भाई, आप अपना कर लो। तब तक तुम बताओ ना, तुमको क्या वेस्ट लगता है, तब तक मैं कर ताकि मैं बीच में मैं बोलूं, उसके बीच में बोला अरे मेरा ये ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्यों ले लूंगा ना, बता सुबह में ब्रश करता हूँ, हगना भी देख लो भाई कि हगते भी हो। उस समय क्या करते हो, वहां भी हगते हो, यहाँ भी हग रहे हो। नहीं मैं तो वहां तो हगता हूँ, यहाँ नहीं हग रहा हूँ तो बट जो भी ये चीजें हैं, तू भी बता। मुझे तो लगता है सबसे पहले तो अगेन मेरा जो परमानेंट प्रॉब्लम रहता है विद द सिटी ऑफ बैंगलोर इज लाइक, मेरे को लगता है जब भी रोड पे होता हूँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब दैट्स अ शेयर वेस्टेज। एंड उसके अलावा कहीं पहुंचने के लिए ही कर रहे हो ना। अरे बट जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं नोएडा में था जब, तो 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर इट वुड टेक मी लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स मैक्स। यहाँ 10 किलोमीटर मतलब घंटा पर मिनिमम गया आपका, 10 किलोमीटर अगर कवर करना है तो दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड वो टाइम ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ पे फोकस भी नहीं करते। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ गाड़ी में, मैं ये कर लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। लाइक आई कांट इवन रीड ऑन माई फोन, आई प्रेफर नॉट टू ऑल्सो। तो वो तो मेरे को पूरा वेस्टेज लगता है। सेकेंडली मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये कि आई स्लीप अलॉट, तो मेरे को हर बार उठने के बाद रिग्रेट होता है कि अरे यार मैं क्यों सोया। बट स्लीपिंग हटा देते हैं। मेरा उल्टा वाला है। आप लोगों को आपस में बैलेंस थोड़ा इधर उधर करना चाहिए, यिंग यांग। तो हाँ, मतलब स्लीपिंग अगर हटा दूँ तो देन लास्टली इज लाइक माई फोन। ऑल्दो आई एम नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया, बट मतलब फिर भी रेडिट और यूट्यूब पे कुछ भी कुत्तों का वीडियो, बिल्ली की वीडियो, ये सब चलते रहता है। तो दैट आई फील मेरे को हर बार रिग्रेट भी होता है, बट फिर वही है जैसे डोपामिन रिलीज होता है ना, अरे देख लिया थोड़ा हंसी आ गया। तो या तो इसमें मेरा सवाल ये है नेक्स्ट दोनों से, जो भी पहले लेना चाहे, ये ले कि अरे पहले ले लेता है ना सब कुछ। मेरे पास उसके बाद ही आता है, कभी कभी तो आता ही नहीं तो ऐसे ही लेगा पहले। पूछो इसको। इनसाइड जोक है ये। सवाल मेरा ये है कि क्या ये आप whatever activities that you have put, which is phone for you or being up till 3 o'clock and doing research, In the dark way. and for you can be traffic of phone. Would you rather replace it with doing nothing? Replace it with doing If I can, nothing. yes. Like when I say nothing, like I would love to have time when I am like just thinking on things that I really want to. Like even when you're in the car commuting, bike चलाते हो तो नहीं हो सकता, तो जस्ट खिड़की से बाहर देखना बैठ के और कुछ ना करना, would you rather do that, या फिर फोन जो आप चला रहे हो उस फोन ना चला के just sitting and just doing nothing, would you rather do that? और आप ये बोल रहे हो कि जैसे ट्रैफिक में फंसना पसंद नहीं है, उस टाइम में मैं कुछ और प्रोडक्टिव कर लेता, तो इनमें से what is the one that we are talking about? So productive कर लेता comes to me when I'm at home sleeping, like oversleeping rather. But when I'm out there in the traffic, मेरे को ऐसा productive कर लेता वो तो नहीं आता, but ये था कि मतलब ये टाइम में कुछ नहीं कर रहा होता है, कुछ बेटर कर रहा होता rather than being. तो प्रोडक्टिव भी हुआ ना, नहीं मतलब कुछ भी, मतलब मनोरंजन के लिए, मतलब फिर वो भी कुछ करना ही हुआ। करना ही हुआ। तो एंड कुछ नहीं करना इन द सेंस कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो फिर अल्टीमेट गोल है कि आपका माइंड इज स्टिल। नहीं, माइंड स्टिल का बात नहीं, माइंड में तो थॉट्स आ रहे हैं, तुम एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इज द होल कॉन्टेक्स्ट। माइंड तो चल ही रहा है। जैसे मैं अगर समुद्र के सामने भी बैठा, माइंड में तो दोस्त, प्यार, गाना वाना वो सब तो चल ही रहा है। गाना भी चलता है। गाना पीछे शार्क पे चल रहा था, बाबा बोले दिमाग में चल रहा है। दिमाग में चल रहा, गुटर गुटर चलता रहता है। गुटर गुटर चढ़ गया ऊपर रे। सही, गुड तो चॉइस। आपका क्या, आप मेरा तो ऐसा है कि कुछ नहीं करके रहना एक वर्च्यू है। ये शायद, लेकिन आई डोंट हैव एन आंसर, बट सबकॉन्शियसली शायद मैं अभी सोच रहा हूँ, मुझे वर्च्यू वो लगता ही नहीं है। सही है। तो इट नेसेसरली इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। हाँ, व्हेन यू आर टू टायर्ड, व्हेन यू हैव हैड अ
एक हफ्ता तुम काम कर रहे हो, आई माइट वांट टू डू नथिंग. दैट्स अ डिफरेंट नथिंग नहीं होगा ना उसमें भी. टीवी देख हाँ, लोगे, TV देख मूवी लोगे, देख लोगे. जैसे- रेस्टिंग को मत लो आप. हाँ, rest नहीं, मतलब जैसे दिस मोमेंट्स ऑफ गोवा में आई वाज डिस्क्राइबिंग, राइट. अभी मैं गोवा जाता हूँ ना, व्हाट आई फील फाइनली कि मैं या तो मुझे आरामबोल बीच में जाना है. वो जितना भी मैं हमेशा सोच के, आई एम नॉट गोइंग टू गोवा 10-15 टाइम्स. मैं हमेशा सोच के जाता हूँ कि मैं एकदम ही चुपचाप रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा फाइनली. बट आई एम मूविंग, मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, ये जाता हूँ, वो जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. तो इवन इफ इट्स इन माई हैंड, मैं वो 15 मिनट ही चुपचाप बैठता हूँ बीच के सामने. बाकी आई एम एक्चुअली डूइंग सम एक्टिविटी. सो इन माई माइंड आई डोंट थिंक कि कुछ नहीं करके रहना, जो इनएक्टिव रहना जो भी है, इज नॉट ए वर्च्यू इन माई माइंड. आई थिंक मे बी फोमो बोल लो, जो भी बोल लो, कि मैं अगर चुपचाप ही ऐसे बैठा कुछ मिस कर रहा हूँ, शायद वो सब चलता रहता है मेरे दिमाग में. तो आई डोंट थिंक इन माई माइंड इट इज अ वर्च्यू. वेरी गुड. बढ़िया. मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो तो शायद बहुत डिफिकल्ट है कुछ ना करना. करेक्ट. यू हैव टू बी मेडिटेटिंग टू डू नथिंग. अरे 100%. हाँ नहीं, बट हाउ यू हैव डिफाइंड ना फॉर द करेक्ट. पॉडकास्ट. मैं कह रहा हूँ उसके लिए भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए. अच्छा. अगर कोई भी एक्टिविटी मुझे नहीं करना तब भी मुझे मेडिटेट करना पड़ेगा उसके लिए. सो स्टिल आई एम डूइंग समथिंग टू रीच देयर. मुझसे नहीं हो पाता है कि मैं, मतलब आई फील वेरी रेस्टलेस इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. हाँ, सेम फॉर मी. बट आई फील कि आई हैव टू गेट कंफर्टेबल समहाउ डूइंग नथिंग. इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस, आई फील. ट्रू, आई ऑल्सो एग्री. जैसे तुमको भी गोवा में कोई मंदिर में गए थे, यू इवन दो क्लाइंबिंग, यू फेल्ट समथिंग डिफरेंट और पीसफुल, राइट. या So I think हमको भी, all of us who are doing and keeping on doing ना, there have been moments when you have felt not doing is so beautiful, but then you go back to doing something. या तो कि बिना करे को रह ही नहीं सकते ना. बॉडी इज डिजाइंड टू बी लाइक दैट. या तो हम चंचल प्रकृति के हैं, जो भी चंचल उसके है, और बढ़िया मशीन बनाई है भगवान ने. कौन सा हमको. हाँ, कि प्रोडक्टिव है बिल्कुल फुल ऑन. बिना प्रोड्यूस करे रह ही नहीं सकते. चंचल तो रहना. कुछ ना कुछ करते ही रहना. कोई चंचल को पहचानते हो, किसी चंचल को? चंचल बोरा. चंचल बोरा नहीं. I have not encountered चंचल बोरा. उनका क्या नाम था वो जो हाँ भजन गाते थे, नरेंद्र चंचल या क्या नाम. हाँ, चंचल एक सिंगर थे. हाँ, Anyways, हाँ, को जानता हूँ. तो आई थिंक वो है कि मतलब तुम और मैं, वी वांट एक्शन. एक्शन मतलब आई वांट आई सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली नहीं रह पाता बिना कुछ मैं भी किए. नहीं रहता. बट ऐसा नहीं है, मैं वही चाहता हूँ. मैं- आई वांट टू लर्न टू बेसिकली नॉट डू एनीथिंग. Now anything you say, everybody will relate that way only. Thanks to Baba. बाबा का यही है. तो अगले उस पे मैं आना चाहूंगा आपके इस सवाल के साथ कि अपसाइड क्या है इस बिजीनेस की. बिजनेस का बिजी रहने के अपसाइड है कुछ? बिजनेस का अपसाइड, अपसाइड क्या है? रुको, अपसाइड मतलब ऊपर की साइड ना. तो ऊपर की साइड बिजी रहना एक तो है कि जैसे ही वाज सेइंग, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग नाउ कि खाली दिमाग शैतान का घर. तो तुम बिजी रहोगे तो शायद खुराफाती चीजें मानते हो इस चीज को क्या, खाली दिमाग शैतान का घर? आप खाली दिमाग शैतान का घर, टू एन नॉट टू एन एक्सटेंट, बट वो कैसे पता, आप तो कभी खाली रहते ही नहीं नहीं. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, तो लेट्स शैतान को तो जानते हैं बाबा. लेट्स देखो तुम जैसे अगर तुम 10 चीजें सोचते हो, लेट्स एज्यूम तुम 2 चीजें शैतान वाला सोचते हो. आई एम जस्ट सेइंग What are those two things? इट्स 20% में परसेंटेज ले. अभी तुमने अगर तुमने मतलब दिन में 1 घंटा तुमने खुद को दे दिया, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, चांसेस है कि तुम 20% मतलब 12 मिनट. It's so random with your percentage नहीं, association ना. 90% लोग ऐसा वेस्ट ही करते हो गए. 20% का कुछ भी फेंक दो. मतलब 12 मिनट तुम कुछ गंदा सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, 12 मिनट. मतलब 1 घंटे में से. 20% हाँ ठीक है, 60 में से. हाँ ठीक है. कैलकुलेशन तो ठीक है ना. Average man thinks about sex every 5 minutes. सेक्स इज नॉट रॉन्ग, नेगेटिव नहीं है वो. अच्छा, वो शैतान वाला. शैतान वाला सेक्स इसका सेक्स नहीं तो तुम डिपेंड्स ऑन सेक्स विद हु. हाँ, सेक्स विद हु, दैट मेक्स इट राइट और रॉन्ग. तो तुम कुछ सोच रहे हो, देन इट्स रॉन्ग. मतलब अरे बोल रहा हूँ मैं, अरे वो भी है ना दुनिया में. सुनो यहाँ हमारा वो डाल देना भाई, rated R.
आज से रेटेड आर क्या, ये तो फ्लैग हो जाएगा एपिसोड ये अगर डाल दिया तो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर तुम बिजी रहते हो तो ना तो अच्छा थॉट आएगा ना तो बुरा थॉट आएगा। आप तो बिजी रहो, तो देन आप इन दैट्स अ पॉजिटिव। अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं आ रहा है, तो दैट इज वन पॉजिटिव आई कैन थिंक। सेकेंड इज दैट कि तुम्हारा बेसिक नेचर क्या है। इफ योर नेचर इज, आई थिंक ह्यूमन नेचर ही है एक्टिविटी। ह्यूमन नेचर भी बोल सकते हो, तो तुमको वो, अगर तुम कुछ नहीं करने से तुमको बाद में पछताओ, सी अगेन एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ रिग्रेट, राइट। तुमको बाद में रिग्रेट होगा कि नहीं, कि जो भी कर रहे हो तुम, राइट। तुम आज पैसे के पीछे भाग रहे हो, विल यू रिग्रेट कि मैं ज्यादा पैसे के पीछे भाग गया है। अगर तुम कुछ और चीज के पीछे भाग रहे हो, सेक्स के पीछे, जिसके भी पीछे भाग रहे हो, अगर तुमको वो रिग्रेट देता है सम पॉइंट ऑफ टाइम, देन दैट वाज नॉट समथिंग दैट यू शुड हैव डन और शुड हैव डन डिफरेंटली पॉसिबली। तो अगर तुमको बाबा, हाँ, व्हाट इज अपसाइड ऑफ बिजीनेस? अपसाइड ऑफ बिजनेस, ओके, अपसाइड ऑफ बिजनेस इसकी खुराफाती चीजें कम आ सकता है दिमाग में। एक तो है कि तुमको रिग्रेट कम हो सकता है तुम्हारे नेचर के अनुसार, कि मैं Okay. बिजी रहा, मतलब मैं अगर खाली रहता तो मुझे रिग्रेट होता। सही है। तो ये है। एक है कि यू माइट बी अ बिगर अचीवर इन लाइफ बाय बीइंग एक्टिव, मतलब इफ क्योंकि अगर द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड ग्लोरीफाइंग बीइंग बिजी, हाँ, and if the world rewards people who are doing something, Something. if this है ना, तो Ecosystem फिर वो तो बन गया। तो तो आपको मटेरियल सक्सेस हाँ, के लिए शायद इट विल हेल्प यू। material success के लिए it will help you, be it job promotion, be it ये, be it being the center of attraction in a crowd, whatever, all those things, right, that comes with being busy or supposedly busy. So these are the upsides of being busy. So ये सब upside है। पीयूष, So if I think about it, मतलब when why busyness is so so to say people say कि आपने सुना होगा ऐसे बहुत लोग बोलते हैं अरे ये आदमी बहुत बिजी है, इसका समय मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो आदमी अपना समय कम दे रहा हो आपको, बिजी नहीं होगा, ठीक है, उसके पास बहुत टाइम होगा, बट वो आपको कम समय दे रहा है टू उसका अपना वो बढ़ाने के लिए, ग्रेविटी बढ़ाने के लिए, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, परसीव्ड वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का सीईओ, वो रूम में बैठ के ऐसा क्रॉसवर्ड खेल रहा होगा, बट आपके साथ वो 10 मिनट का ही समय देगा, आपको लगेगा अरे 10 मिनट का विंडो है, इसमें ही मेरे को सब कुछ करना है। सो अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो वाई पीपल एस्पायर और वाई पीपल शोकेस। इट कुड बी अ फसाड, इट कुड बी द एक्चुअल ट्रूथ की वेदर पीपल आर एक्चुअली बिजी। बट मेरे को तो ऐसा लगता है अभी के टाइम पे लॉट ऑफ पीपल try to be busy, Pretend to be busy. or pretend to be busy to increase their perceived value. And इन सब लोगों के पास ना, आप ये कॉमन टर्म है which is like a time poverty. So they will say कि we do not have time. आप कुछ भी बोलोगे, बोला अरे यार मेरे पास समय नहीं है, मैं ये वीकेंड ये वहाँ हूँ, मैं वहाँ भी इस वीकेंड वहाँ हूँ, मंडे यहाँ हूँ, ट्यूसडे वहाँ हूँ, तो आपको लगेगा अरे कितना बिजी है, राइट। एंड देन देर आर सर्टन पीपल यू वुड सी जो 24 घंटे में भी मतलब 48 घंटे का काम कर लेते हैं, और वो दे स्टिल डोंट क्रिप की बिजी, वो सब चीज़ के लिए समय निकाले जो चीज़ आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है, कमिंग बैक टू रमन्स क्वेश्चन, कि स्टिलनेस ऑफ द बॉडी एंड स्टिलनेस ऑफ द माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टिलनेस ऑफ द बॉडी आई वुड नॉट से नो, आई वुड से नो, क्योंकि मेरे को चलाते रहना है अपना बॉडी, इट्स लाइक अ मशीन, तभी मैं एक्टिव रहूंगा तो ही। तुमको तो सोना पसंद है बोला अभी तुम। हाँ, मतलब उसके बाद ना, अच्छा, 24 घंटे तो नहीं सो सकता, पहले चलाएगा बॉडी, फिर दौड़ाएगा, फिर टायर्ड होगा, फिर सोएगा। फिर सोऊंगा। ओके, अच्छा। बट स्टिलनेस ऑफ द माइंड आई वुड 100% प्रेफर। वहाँ पे मैं मतलब जितना कोशिश करूँ वहाँ ले जाना चाहूँगा कि आई वुड वांट टू सिट एंड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, तो विच व्हाट रमन वाज टॉकिंग अबाउट बाय मेडिटेटिंग। आई थिंक टेकिंग क्यू फ्रॉम हिम व्हाट ही सेड बेसिकली, मुझे लगता है कि बीइंग बिजी एंड बीइंग सक्सेसफुल एक कोरिलेशन बन चुका है लोगों के दिमाग में, कि अगर तुम बिजी नहीं हो शायद तुम उतना सक्सेसफुल हो नहीं, मतलब बिजी हो तुम तो सक्सेसफुल हो तुम, तो वो एक बन चुका है लोगों के दिमाग में, मतलब। तो आई थिंक वो तो एक, बिकॉज वो बन चुका है तो योर एवरीबॉडी इज नाउ एस्पायरिंग टू बी बिजी, कुछ भी कर रहे हो उसके कुछ लिए भी कर busy रहे हो। रहने के लिए। एस्पायरिंग टू बी बिजी, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एनजीओ ज्वाइन कर रही है, मतलब सम ऑफ इट माइट बी नोबल हार्टेड, बट अ लॉट ऑफ इट कुड बी कि मतलब आई नीड टू बी आउट देयर, मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये एनजीओ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग कैफे में जा रहा हूँ। क्या बोले सही है। एमवे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो भी है।
सही है. इसको लगता है कि आपको इसका एक रीजन ये भी है कि लोगों को लगता है टाइम लिमिटेड है, इसलिए कर लो जो करना है, जी ले अपनी जिंदगी. हाँ वो तो है, जैसे मतलब जैसे मैं फोमो का बात बताया, राइट. फोमो इज एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर इटसेल्फ कि टाइम इज लिमिटेड, और ये है कि मुझे इतना कुछ करना है इस टाइम में, राइट. दैट माइट बी सम पीपल्स फीलिंग. मतलब जैसे मेरे एक टाइम पे मैं सोचा था कि मैं बहुत किताब जब पढ़ता था, राइट. अभी तो नहीं पढ़ता हूँ, तुम अभी भी पढ़ते होगे. तो मुझे लगा था कि मैंने कुछ रिसर्च किया था कितने अच्छे किताब है, कुछ 2000 ना कुछ किताबों का लिस्ट आया था. तो मैंने बोला कि मैं अगर रोज भी पढ़ता हूँ, मैं इसका तो 1/10 ही पढ़ पाऊंगा इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स. मैंने कुछ एक कैलकुलेशन किया था. गलत था नहीं कैलकुलेशन. जो भी है. अरे कैसे 200 20,000 बुक्स पढ़ता है बोलता है ऐसा. अरे 20,000 200 बुक्स ही पढ़ पाओगे आप अपने नहीं 20 साल में. आई एम जस्ट गिविंग अच्छा, hypothetical. हाइपोथेटिकल कि जितने अच्छे किताब लिखा गया है, right? उसका 10% पढ़ पाओगे. हाँ मैं उसका एक अंश ही पढ़ पाऊंगा. अगर मैं रोज पढ़ा फॉर द नेक्स्ट 30 years, and in these 30 years another good number of books will be added, right? So I will always be deficient as to how much nice knowledge is there and how much I can accumulate. तो तब तो वो कैलकुलेशन जस्ट रफली करके, एंड द सेम कैलकुलेशन वाज अबाउट म्यूजिक, मूवीज, मैं दिमाग में सोचा था. So then there is so much good things in the world that I am not able to absorb because of this much time that I have on this planet. तो वो मुझे लगा था कि आई नीड टू तो इसलिए इंस्टाग्राम चला लो. इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम नहीं मतलब तो 3 बजे तक रिसर्च कर लो. करते रहो, हाँ रिसर्च करो, ये पढ़ो. तो वो तो लगता है मतलब कि बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन आई फील कि मतलब करते रहना है. मतलब ऐसे चुपचाप बैठ के सागर देखने से कुछ होगा नहीं. मतलब तुम कुछ पढ़ो उस टाइम पे, या तो कुछ रिसर्च करो, या तो कुछ फिलोसॉफी के बारे में जानो. डू समथिंग अदर देन स्टेयरिंग एट द ओशन. सही, बढ़िया. आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड एज वेल. वी हैड गुड डिस्कशन. तुझे पीयूष इस पे कुछ व्यूज है क्या टाइम नहीं. इन्फ्लुएंस पे? I You talked about time poverty, which in a different context, though. Yeah. So so that we have come to the end of this episode, and I think we had a good discussion. For me, I feel, as Piyush mentioned, stillness of mind or not doing anything might hold all the answers. Right? If we learn to do nothing, we'll realize that probably we were running for things that don't even matter. Right? But that's just my views. Baba, on the other hand, had very diverse views. He thought that, it is essential for us in this world that is measured by how busy you are, and your success is governed by. I'm not going after that success. Uh-huh. I'm just But- saying my nature doesn't possibly encourage me to not do anything. It encourages me to keep on doing something. Correct. But you also enjoy that. You are not countering that. I'm not countering that. That is the. Yeah, I'm enjoying that. Yeah. जो भी आपका इंस्टिंक्टिव है वो, हाँ. कि आई शुड कीप डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाट यू सपोर्ट. Yeah, जैसे मतलब मैं रोज रास्ते पे 2.5 घंटा बिताता हूँ गोइंग टू ऑफिस और कमिंग बैक. उसमें मैं कुछ गाना सुनूं, पॉडकास्ट सुनूं, माउस. जो भी है. तो मुझे द ट्रैफिक इज एनोइंग, बट वो टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे ऐसा नहीं लगता है एक्चुअली. टाइम वेस्ट हो रहा है. नहीं, टाइम वेस्ट तो चलो अलग हाँ, बात मतलब हो गई. उसमें मैं कुछ और कर लेता, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है. नहीं, इसमें मैं कुछ भी ना करता. हाँ, कुछ भी नहीं करता वो लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं घर पे भी होता तो मैं कुछ करता. करेक्ट. मैं समझ गया आपका स्वभाव समझ गया मैं. चरित्र आपका खुल के सामने आया. remember guys, Baba needs action. हाँ, मतलब बाबा नीड्स एक्शन आफ्टर एक्शन. एक्टिविटी, एक्शन तुम लोगों का था. आपने बोला कि रमन और मुझे एक्शन चाहिए. ना मैं एक्टिविटी करता हूँ, तुम लोग एक्शन करते हो. डिफरेंस है. एक्टिविटी पे एक्टिविटी आपको पेलनी है. पेलना अगेन हैज अ कॉनोटेशन दैट आई डोंट वांट टू एग्री. एक्शन तुम लोगों का है, मेरा एक्टिविटी है. आई एम अ pious person. Not a hunter. I'm the hunted. You are pious and I'm Piyush. And you're also sexed. वो तो मतलब ठीक है. कुछ भी बोल देते हो आप. कुछ any last comments from you, Piyush? नहीं, but हाँ, I also feel कि while there is lot of things to distract, like Baba said, and keep you busy, I mean, and let's be very honest, you can't have 24 hours of productivity. You need some, like for sanity's sake, you need some time off anything and everything. That's why even great cricketers like Virat Kohli, Sachin Tendulkar, no matter how much they love the game, but they also need time off the game. And
when it comes to any sports for that matter. So being busy is good, being productive is good, but everything in excess, like they say, is not good. And Excess of anything is and a false pretense of being busy is absolutely वो तो चुतियापा ही है. या तो अगली बार जब आप बिजी होगे आप किसी को बोलोगे आई एम बिजी you might just remember this episode and you might question yourself whether you are really busy or whether you want to be busy or take a break and do nothing and just be. Right? So with that note, bye-bye everyone. Please comment, like, subscribe. See you all with another hash in the next episode. Bye-bye. bye. And stay busy with our different videos. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. बहुत ही बढ़िया.